Youth Wing of All India Memon Jamaat Federation celebrated Republic Day on Friday the 26th of January 2024 at in the AIMJF office ground, Beg Mohammed Park, Narayan Guru Street, Mumbai. Mr. Imran Fruitwala compared and welcomed all the guests with guard of honor. Function was commenced with National Anthem and Memon Anthem. Prominent dignitaries of all community were present. India national flag was hoisted by Mr. Iqbal Memon officer, Mr. Yusuf Batliwala USA, Mr. Monty Khan USA, Mr. Ahmed Maki KSA, Mr. Imran Alvi, Mr. Aziz Machiwala, Mr. Asif Abajuma, Mr. Imran Fruitwala, Mr. Yusuf Malkani, Mr. Amin Ajmeri, Mr. Siraj Darbar, Mr. Irfan Lodha etc. Numerous prominent members of all community were present. With Mr. Iqbal Memon officer, Mr. Yusuf Batliwala USA, Mr. Monty Khan USA, Mr. Ahmed Maki KSA, Mr. Aziz Machiwala, Mr. Asif Abajuma, Mr. Imran Fruitwala, Yusuf Malkani, Mrs. Nasima Surti, Mr. Irfan Lodha, Mr. Aziz Sandha, Mrs. Afreen Sheikh, ex-municipal corporator, Mr. Umar Lagdawala, Mr. Anwar Kishori, Mr. Faz Sopariwala, Mr. Siraj Dosani, Mr. Amin Ajmeri, Mr. Siraj Darbar, Mr. Aftab Ajmeri, Mr. Tawfiq Kapadia, Mr. Mansoor Zariwala, Mr. Rafiq Lekani, Mr. Latif Batliwala, Mr. Ilyas Dangra, Mr. M.A. Khalid, Mr. Nabi Akhtar, Mr. Ikhlaq Khan, Ms. Rukhsana Mehsania, Mr. Muhammad Malkani, Mr. Ikhlaq Ahmad, Mr. Mubarak Bhadana, Mr. Riaz Ansari, Mr. Kamal Mandlekar, Mr. Shafi Khan, Mr. Nomohand Patel, Mr. and various other dignitaries of community were present. All the members were welcomed with guard of honor by Scout of Burhani Guard. Mr. Iqbal Memon officer highlighted the great dedicated services rendered by Memon community, Kerala community, Kokni community and other Muslim community for the independence of India. Mr. Faz Sopariwala is appointed as a fitness ambassador panelist of AIMJF Youth Wing. Mr. Imran Fruitwala stated that AIMJF will be going to organize job fair in collaboration with Andheri Suburban Hali Memon Jamaat on the 10th of February 2024 at Diamond Banquets, Mumbai. Prominent members were felicitated with shawl and also they gave their bite appreciating the event. 75 साल इंडिपेंडेंस डे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में आप लोग आए, सबको गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया गया और फ्लैग होस्टिंग भी हुई। एकता और भाईचारा और हिंदुस्तान की सालमिया का हमने सबूत दिया और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाबा साहेब आम्बेडकर और उनकी टीम ने बना करके पेश किया था और आज से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आइन और कानून लागू हुआ है। ये आइन और कानून जो है उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पूरा हक, तमाम मजहब के लोगों को जो हिंदुस्तान में बसते हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनके लिए एक सरका सालमियत, हिफाजत सरकार की, उसकी जमानत में रहेंगे। ये इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और सबको समान अधिकार, किसी को कोई मजहब के हिसाब से किसी को बरतरी या किसी को कमी, ये हमारे बंधारण के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर हम इसको मान लें तो हकीकत में हमारा हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया हो जाएगी। मगर बदनसीबी ये है कि यहाँ पर अब जो माहौल जो है वो बहुत ख़राब होते जा रहा है। छोटे छोटे मामले में कल देख लो, कुछ मामला नहीं, कुछ नहीं, मीरा रोड के अंदर इतना अमन और भाईचारा था जिसको वहाँ के मुस्लिम बिल्डर ने ही बसाया था और भाईचारा और वो था। और देखिए थोड़े से मामले के अंदर कुछ लोग हैं, ये नहीं कहता हूँ मैं,
कुछ लोग हैं 1% 2% लोग जो हैं वो माहौल को ख़राब करते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सालमियत को, एकता को, भाईचारे को और मोहब्बत को हम बांटें, हम मोहब्बत को बढ़ाएं। मेमन बरादरी के बारे में बोल दूं क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ये प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं। मेमन बरादरी का कंट्रीब्यूशन जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत है। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले मेमन हैं। सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी खुद लिखते हैं, महात्मा गांधी को नौकरी पे ले जाने वाले मेमन हैं। साउथ अफ्रीका लेकर के गए। इनके 2 भाइयों के, दादा अब्दुल्ला और 2 भाइयों के बीच में कोर्ट का केस चल रहा था। तो पोरबंदर से, ये भी पोरबंदर के थे, गांधी जी भी पोरबंदर के थे और जवेरी ब्रदर्स भी पोरबंदर के थे। तो इनको नौकरी पे लेकर के गए उनको, और वहाँ पर उन्होंने समझौता करवा दिया, कोर्ट का केस विड्रॉ करवाया। उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत मोहम्मद जवेरी की सदारत के अंदर हुआ। महात्मा गांधी को इन्होंने कहा कि आप जो है हिंदुस्तान में तहरीक चलाइए अंग्रेजों के खिलाफ और हिंदुस्तान को आज़ाद कीजिए आप। वो वहाँ से उनको प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महात्मा गांधी खुद अपनी किताब के अंदर सत्य के प्रयोग में उन्होंने लिखा है। हमारी भी कमी है, हमने बताया नहीं है, हमारी कुर्बानियाँ हमने बताया नहीं। हर कौम की कुर्बानी, मैं नहीं कहता हूँ मेमन की ही कुर्बानी है, कोकनी की भी कुर्बानी है, केरला वाले जो हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, इनकी भी कुर्बानी है। सारे मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं, तब जाकर के ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इसको बरकरार रखने के लिए गंगा जमनी तहजीब जो है, एकता और भाईचारा जरूरी है। अगर अफरा तफरी हुई इस मुल्क के अंदर तो ये मुल्क जो है तबाह और बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए मेरी अपील हमारे बरादरी से यहाँ जो है मौजूद हैं, एकता और भाईचारा हमको बनाए रखना है, हमको अखलाक को फ़रोग देना है, हमको जो है हाथ बढ़ाना है, मोहब्बत हमको बांटनी है। मेरा नाम अहमद कमाल मक्की है। मैं जिद्दा में रहता, सऊदी मक्का में हाजी लोग अचल था। अरे जिद्दा में मासा मेमन वेलफेयर सोसाइटी है, मासा करके ग्रुप है। माशाल्लाह 600 फैमिली वहाँ पे हैं। इसमें भी माशाल्लाह बहुत ही और अच्छा है। और मदीने में है माशाल्लाह, मक्का में। तो हम लोग जो भी होता है खिदमत के लिए तैयार है। आपके यहाँ से कोई भी हज के लिए आए, उम्रे के लिए आए, हमारा नंबर है तो आप दीजिए और हमको खिदमत का मौका दीजिए। एवरीबॉडी वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत खुश नसीबी है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं रहता हूँ यूएस में 15-16 साल से। जैसे इकबाल सर ने कहा, हम वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर हमारा दिल यहीं रहता है। वो तो आप हमें अगर 50 साल भी वहाँ रख दो, विल स्टिल बी इंडियंस बाय हार्ट। अगर हमें यूएस पासपोर्ट भी मिल जाए तो भी ये जो हमारा जो ये झंडा है, जो हमारे ट्राई कलर्स हैं, ये हम कभी नहीं, हमारे दिल से और हमारी रूह से कभी नहीं निकाल सकते। जो हमारी कम्युनिटीज़ ने मेहनत करी है, मेमन जमात हो, सुन्नी जमात हो, कोकनी हो, महाराष्ट्रियंस हो, गुजरातीज हो, हम सब का खून बहा है तो आज हमें आज़ादी मिली है। सो वी कैन नॉट रूल आउट कि इन्होंने ज़्यादा किया या इन्होंने कम किया। बहुत बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूएस में जिस तरीके से हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, भाइयों की तरह करते हैं। मैं चाहूँगा कि आई होप इस उम्मीद से कि हम सारे अगले साल भी इसी तरह सेलिब्रेट करें और सारे मिल के नेशनल एंथम गाएं। आई थैंक यू वेरी मच सर। इस तरह मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल गुड हेल्थ, गुड वेल्थ एंड जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेमन जमात फेडरेशन के जो हमारे सदर हैं इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, मैं उनके बारे में आपको ये बात बता दूं कि इनको मेमन जमात की जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, मगर आजकल जो है इकबाल भाई पिछले 6-7 महीने से मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि बम्बई की दूसरी बरादरियों को भी जो खड़ा करने का काम कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं और हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। तो इकबाल भाई, आपको आज ये जमहूरियत के दिन के लिए बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद है। तो आप जो सभी जमातों को जोड़ रहे हैं, जैसा मैंने देखा अभी कि आपने कोकन जमात की बात की, आपने केरला जमात की बात की है, उसी तरह आप मैं देख रहा हूँ कि आप बुनकर बरादरी सभी बरादरियों को लेकर आजकल मीटिंगें भी कर रहे हैं और समाज में नौजवानों को नई बुनियाद पे खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ और मैं डैलस टेक्सास से हूँ। मैं इकबाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे आज ये इन्वाइट किया रिपब्लिक डे पर। आप सब लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करे मेमन जमात में। मैं भी वहाँ पर मेमन जमात में थोड़ा वर्किंग एज अ मैनेजिंग कमेटी के अंदर हूँ। और माशाल्लाह इकबाल भाई से कहता हूँ अगर कुछ भी यूएस के अंदर मेमन जमात के लिए कुछ भी हो, वी आर देयर। और माशाल्लाह एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा, आज के जो इकबाल भाई ने कहे कि मुझे पूरा जनगण मन आता है। माशाल्लाह मैं जब भी इंडिया आता हूँ मुझे ऐसा लगता है आई रियली बिलोंग हियर। 25 साल से मैं वहाँ पर हूँ, लेकिन आज भी माशाल्लाह मेरी जो दिल और रूह मेरा यहाँ पर अटैच्ड है। और मोंटी खान जो मेरे बड़े पुराने दोस्त है, इनसे मेरी गहरी दोस्ती इसलिए हुई कि एक बात मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ। इनकी परमिशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये मालूम होना चाहिए लोगों को। इनके पास ग्रीन कार्ड है और ये यूएस सिटीजन के लिए एलिजिबल है पिछले 8 साल से, लेकिन इन्होंने यूएस सिटीजनशिप अभी तक नहीं एक्सेप्ट की है क्योंकि ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, आपको इंडियन पासपोर्ट जमा करना पड़ता है। वो बोले मैं कभी भी नहीं करूंगा इंडियन मेरा पासपोर्ट, मुझे ये सिटीजनशिप नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात इनकी मेरे बड़े दिल को छुई है, मेरे गहरे दोस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत। देखिए इतनी कुर्बानी, इतनी मोहब्बत हिंदुस्तान के रखने के बावजूद भी हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाया जा रहा है, कितना दिल जो है वो चोट खाता है। क्योंकि सबसे बड़े बागवान जो इसको संवारने में हमारा हाथ है, इसको फलाने में फुलाने में ऐसे वफादार कौम के जो जियाले अमेरिका में भी रहते हुए हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। नबी अख्तर कुरैशी, जॉइंट सेक्रेटरी इंडो अरब सोसाइटी। मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूं और इकबाल भाई को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। उनके साथियों को कंटिन्यूस कई सालों से ये प्रोग्राम, चाहे वो 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, बराबर सेलिब्रेट करते हैं। और आज जैसा देखा गया है, लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी बरादरी का हो, कम्युनिटी का हो, उनको बहुत करीब ला रहे हैं, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और जो ये फाइनेंशियली मदद एक अलग बात है, लेकिन ये जो अपनी एक्सपीरियंस से लोगों को सजेशन देते हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। देखिए सकलैनी सांडा, जनरल सेक्रेटरी हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया। हमारी कमेटी जो है, तंजीम जो है, जो हमारे पीर मुर्शिद के नाम से काम करती है, वो पूरे मुल्क में एक चेंज लाने के वजह से चेंज लाना चाह रही है। और वो ये है कि जो सोशल ईवल है डाउरी, उसे ख़त्म करने के लिए हम लोग की एक तहरीक है, जिसमें हम पूरे इंडिया में पूरा साल कंटिन्यूस मैस मैरिज, समूह लगन जिसे कहते हैं, वो करवाते हैं। मेरा नाम रुखसाना मिसानिया है और आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो। इकबाल मेमन जी जो काम कर रहे हैं अपने कौम के लिए, जैसे कि वो अपने ही जमात के लिए नहीं कर रहे, वो जितने भी मुस्लिम बिरादरान हैं उन सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी अभी हमें सख्त ज़रूरत है। क्योंकि क्या हुआ है कि हम इतने बिखरे हुए तबके में हैं कि लोगों को अपने हक के लिए लड़ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रैप में फंस जा रहे, क्योंकि कोई उनको राह दिखाने वाला नहीं है। तो वो एक बस इस अंधेरी जगह पे चिराग लेके राह दिखाने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर मोहम्मद किशोरी, मैं एनईसी मेंबर हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का। और रिपब्लिक डे की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे इकबाल भाई सब लोगों ने बताया कि खाली इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे नहीं, इंक्लूडिंग ईद मिलादुन नबी का जुलूस के वो वेलकम करते हैं एवरी ईयर। और हिंदू मुस्लिम एकता के अपने गणपति के त्यौहार में भी वो अपने सबको वेलकम करते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर एवरीबडी। प्रिंसिपल खान अखलाक अहमद, नूर खानदेश एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आप सबका खैर मकदम करता हूँ। खानदेश का एक हिस्सा छूट रहा था मेमन से, उन्होंने लपक करके जो है हमारी सोसाइटी को जो है वो गोद ले लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 11 सेंटर्स का मामला जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से चल रहा है। मैं उनके लिए ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज डोसानी है। मैं यहाँ पर हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी और जब भी इकबाल साहब बुलाते हैं, इमरान फुट वाला प्यार से बुलाते हैं, मैं आता हूँ। मिलता है एक हमको ये कि इज इंस्पायर्ड, एवरीबडी वांट्स टू बिकम इकबाल ऑफिसर। जो जब क्या मुश्किल है, हम इनकी तरह हम 10% भी बन जावे तो हमारे खुश नसीब। सही बात।
हम बनना चाहते हैं। इकबाल साहब जो करते हैं कौम के लिए, मेमन के लिए, सबके लिए, हर जमात को मिलाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत खुशी हुई आज मिलके रिपब्लिक डे के ऊपर। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने 75 साल यौम जमहूरिया मनाने का फैसला किया है। आज बहुत शान और शौकत के साथ हिंदुस्तान के 75 साल यौम जमहूरिया हम यहाँ बैठकर मनाएं। मैं सबको विश करना चाहूँगा हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए कि हमारे को ये 2 दिन नसीब होते हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ये 2 दिन बहुत जोरों शोरों से बनाता है, बिकॉज हमारा ये मानना है कि हम सब बहुत प्राउड इंडियन है। हम ये कंट्री में बॉर्न हुए और हमारा ये जो टाइटल है इंडियन, आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया कहीं पे भी इंटरनेशनल स्पेशली जाते हैं तब हमारे को कदर होती है कि इंडिया क्या है, हमारा कंट्री क्या है। और इंडियन जितने उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। इंडिया हर चीज में आगे, आज कोई भी स्किल्स हो, कोई भी चीज हो, उसमें इंडिया हर चीज में आगे। और आजकल जितने भी इंटरनेशनल कंपनी थे वो खुद इंडिया के लोगों को स्किल्स के ऊपर हायर करना चाहते हैं, बिकॉज इंडियंस के पास इतनी स्किल्स है, क्रिएटिविटी है। और उसके साथ साथ हमारा कल्चर बहुत है, रिच कल्चर है, हमारा हेरिटेज है हमारे पास। यूथ के लिए कभी प्लेटफॉर्म नहीं था मेमन कम्युनिटी में। जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से यूथ के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इन्होंने जो बोले कि मैं जब से प्रेसिडेंट बना हूं तब से जितने भी जो पोस्ट होल्डर थे वो इसके लिए है क्योंकि हम तो हैं इनके साथ, लेकिन ये भी हमारे साथ उसी तरीके से रिस्पेक्ट देना, कुर्बानी देना, हमारे को समझना, हमारे प्रोजेक्ट अप्रिशिएट करना, हर चीज 24/7 इज अवेलेबल। मैं हमारे विदर्भ के कन्वेनर भी आए हुए थे यहाँ पर, इरफान भाई लोधा, और साथ साथ आज फैज सोपारी वाले को फिटनेस एम्बेसडर पैनलिस्ट भी हमने बनाया यूथ विंग का। और ये सब चीजें हो रही है, यूथ विंग एक्सपेंड हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आज जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आए, यूसुफ भाई बाटली वाला, मोंटी खान साहब, और हमारे अहमद भाई मक्की सऊदी अरेबिया से जो आए, और वो 2 यूएसए से आए, ये आप लोगों के आने से हमारे को बहुत मोटिवेशन हो। तो सब इस तरीके से, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। एमएल खालिद साहब आए, नबी साहब आए, हमारी लेडीज में से नसीमा भाई सुरती जो कि बहुत एक्टिवली अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। लेकिन आप जितने लोग हैं आप सब प्रोमिनेंट हो। हमारे अनवर भाई साहब, सिराज भाई जो आज इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, बोर्ड जो हमारा सपोर्ट करता है। आज हमारे स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन आसिफ भाई अब्बा जुमा फैमिली को बाहर भेजे और खुद ट्रिप डिले की और यहाँ पर आकर हमसे हमारे प्रेसिडेंट साहब और मेरे से पर्सनली मिलकर अटेंड करके गए। तरीके से हमारे सीईओ अल्ताफ भाई होली जो हमेशा सपोर्ट में रहते और बहुत काम संभालते, पूरा स्टाफ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का, मेमन टाइम्स का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग भी बहुत सपोर्ट करते।